Hello students, hello children, friends. Uh, a very big thank you first of all to all of you for an overwhelming response to my last video, how to overcome the addiction of smartphone. Thank you so much, viewers. Uh, your response motivates me to bring my ideas and my thoughts towards a positive direction and think about some new issue for the welfare of our society. As community of students and teachers, we have this responsibility to spread the right kind of information to make people aware about all which is happening around us. Because there is a section of people where the information either don't reach or they are not able to understand it completely because of its complexity maybe, or because of the lack of complete information, right information. This push of making this video came to me from my vegetable seller. Yesterday when I was buying vegetables, he told me, "Mem sahab, aapko pata hai, aajkal," he was wearing double mask, and he told me, "Mem sahab, aapko pata hai, आजकल काला कीड़ा का और पीला कीड़ा, भूरा कीड़ा और सफेद कीड़ा, ये बीमारियां भी बहुत हो गई हैं और ये अब यू हैव टू बी ऑल द मोर केयरफुल." तो मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा, भाई भैया ये सब आपको किसने बताया? He said, मेरे बेटे ने, and he is in 9th standard. So he had that complete faith in his son कि मेरे बेटे ने मुझे ये information दी है कि this deadly disease is there in the is prevailing these days and we have to be careful. So that gave me the idea that we as students and teachers must support, must give the right kind of information as and when we can. And first of all, before starting this video, let me tell you that I am not a doctor. I am a teacher, a biology teacher. So whatever information I've collected about this black fungus, I'm giving it to you. But the medically, doctor is the best judge. Doctor is the best person to tell you about this fungus. Now, what is fungus? Fungus is a group of microorganisms like bacteria are, viruses are, protozoans are. So fungus is also a group of organisms. They are having thread-like structures which are called mycelium. And on these myceliums, you will find round structures. These are called the fruiting bodies where the spores are formed. Now, these spores are tiny and we cannot see these spores by our naked eyes. But as a whole, fungus we all have seen. हमारे घर में जो बासी ब्रेड होती, डबल रोटी, if you keep it in थोड़ा सा गीला moist में, moist bread, we can see the green patches, the black patches, the white patches on it. That is fungus. If you see with the help of a magnifying glass, you can see the thread-like structures and the black protein bodies on it. That is fungus. And that fungus is bread mold. And another fungus which we have seen in our houses is in our shoes during monsoon time. बारिश के टाइम में हमारे जूतों में बेल्ट पे सफेद सफेद पैचेस आ जाते हैं, वो भी फंगस है. ये जो ब्लैक फंगस है, ये ब्लैक फंगस जो है वो भी एक तरह की फंगस है जिसको कि हिंदी में फफूंद कहते हैं. और ये जो फंगस है वो अधिकतर डिकेइंग मटेरियल पे ज्यादा रहती है, जैसे कि सड़े गले
फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, मिट्टी में, बिकॉज ये जो फंगस है दिस कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड, तो ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते. दे आर सैप्रोफाइट्स एंड दे डिपेंड ऑन द डेड एंड डिकेइंग मटेरियल, डिकेड ऑर्गेनिक मटेरियल फॉर देयर फूड. तो इसलिए ये लोग ये सॉइल में मिलेंगे आपको, और इनके जो स्पोर्स हैं वो एयर में होते हैं. इनके जो स्पोर्स हैं, जो फ्रूटिंग बॉडी से स्पोर्स निकलते हैं, वो एयर में होते हैं, और ये स्पोर्स ही हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं. अब ये जो ब्लैक फंगस है इसका नाम है म्यूकरमाइसिटीज. एक तरह का फंगस है ये, और ये फंगस हमारी बॉडी में दो तरह से जा सकता है. एक, जब हमारी बॉडी में कोई कट हो या कोई जला बर्न हो, वहां से ये एंटर करेंगे इसके स्पोर्स, और अंदर जाके ये इन्फेक्शन करते हैं, संक्रमित करते हैं हमारे उस एरिया को, उस जगह को. और अगर ये किसी कट या बर्न से गए हैं तो ये लोकल एरिया को ही इन्फेक्ट करेंगे, जो कि बहुत इजी है उसको ट्रीट करना, क्योंकि एंटी फंगल क्रीम्स हैं, एंटी फंगल के टैबलेट्स हैं. हम लोगों को कई बार वो जो फंगस का रिंग वर्म्स हो जाते हैं या फंगस नेल्स में भी हो जाता है, तो वो उसका एग्जाम्पल है, जो कि लोकल एरिया में बाहर से कट से आ जाते हैं ये स्पोर्स, और हमारी बॉडी में इंक्रीज होते हैं नंबर में, और इन्फेक्ट करते हैं हमारी बॉडी के उस पोर्शन को. तो वो लोकल एरिया को इन्फेक्ट करते हैं. पर जो दूसरा तरीका है वो तरीका है कि ये स्पोर्स में एयर के थ्रू, जब हम सांस ले रहे हैं तो हमारे नेजल कैविटीज, ये नाक नॉस्ट्रल्स के थ्रू हमारे अंदर चले जाते हैं, और हमारे अंदर जाकर नेजल में और नेजल नॉस्ट्रल्स में फिर हमारे ये जो साइनसेस है, साइनसेस क्या है? साइनसेस है एयर पॉकेट्स, द एयर पॉकेट्स विच आर देयर इन बिलो द आईज, चीक बोन्स पे, फोरहेड पे, यहाँ जॉज पे एयर स्पेसेस हैं जिनमें कि म्यूकस होता है. नाउ व्हाट इज म्यूकस? म्यूकस इज द वाटरी लिक्विड जो कि जर्म्स को ट्रैप करता है और जर्म्स को रिमूव करता है हमारी बॉडी से. तो ये एक प्रोटेक्टिव लिक्विड है जो हमारी बॉडी में है. तो यहाँ से नॉस्ट्रल से ये फंगस हमारे साइनसेस में चले जाते हैं, डिफरेंट एरियाज में, आई के ऑर्बिट में, फोरहेड में, चीक बोन्स में, जॉज में, ये यहाँ चले जाते हैं. और यहाँ ये मैनिफेस्ट होते हैं, बहुत इंक्रीज होते हैं नंबर में, और इन्फेक्ट करते हैं एरिया को. एंड दे आर वैसो इन्वेसिव. वैसो इन्वेसिव मतलब ये हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर इन्वेड कर देते हैं, हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर चले जाते हैं. और जब ये हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर चले जाते हैं तो बहुत जल्दी डिफरेंट एरियाज में फैल जाते हैं. डिफरेंट एरियाज में मतलब जैसे हमारे ब्रेन में, हमारे लंग्स में, किडनीज में, इस तरह से अलग अलग एरिया में फैल जाते हैं अगर इसको अनट्रीटेड रखा गया तो. अब सवाल ये आता है कि ये ब्लैक फंगस पहले कहाँ था? ये पहले भी था, इसका इन्फेक्शन पहले भी होता था, बट ये रेयर था, बहुत बहुत कम लोगों में ये होता था, बहुत कम प्रतिशत लोग थे जो इससे सफर करते थे. बट आज in this post COVID-19 era, अभी the central government and the state government they are thinking of declaring it pandemic. Pandemic है ये COVID-19 pandemic के साथ another pandemic, क्योंकि अभी रिसेंटली ये देखा गया है कि पोस्ट कोविड पेशेंट्स में, जो पेशेंट्स कोविड से रिकवर हो गए हैं, उनमें उनकी रिकवरी के 2 या 2.5 हफ्तों के बाद उनको ये इन्फेक्शन हो रहा है. और ये इन्फेक्शन इतना जल्दी फैल रहा है कि काफी लोगों की, आपने, हम जो देखते हैं बहुत स्केरी पिक्चर्स आते हैं, आ रहे हैं न्यूज़पेपर्स में, बहुत स्केरी पिक्चर्स हमें टीवी पे दिखाए जाते हैं कि आंख निकालनी पड़ी,
जॉ को रिमूव करना पड़ा, पूरा ऑर्बिट रिमूव करना पड़ा, कॉर्निया को रिमूव करना पड़ा, क्योंकि ये जब इन्फेक्शन हो जाता है तो यू नीड स्पेशलिस्ट, सर्जन, जो कि ये इन्फेक्टेड टिश्यू को आपकी बॉडी से रिमूव कर सके। तो ये जो सर्जन्स हैं, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल इज रिक्वायर्ड फॉर दिस काइंड ऑफ इन्फेक्शन, क्योंकि ये जो इन्फेक्शन है ये अलग अलग जगह पे फैल जाता है कुछ ही दिनों में। तो इसके लिए आपको न्यूरोसर्जन चाहिए, देन आपको ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट चाहिए, देन ईएनटी सर्जन चाहिए, देन नेफ्रोलॉजिस्ट चाहिए। So you need a multi-speciality hospital because these surgeons, they are capable of removing these infected tissues from the body. Now the million dollar question arises कि ये होता कैसे है, कहाँ से आया? जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सॉइल में है, इसके स्पोर्स किसी भी गंदी डिके ऑर्गेनिक मैटर में है, तो हाइजीनिक कंडीशंस रिस्पॉन्सिबल हैं अगर हम अनहाइजीनिक कंडीशंस में हैं। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर। जो मॉइस्चर है, अब ये जो कोविड पेशेंट्स ठीक हो रहे हैं जिनको की ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी थी, तो वहां का जो मैकेनिकल सपोर्ट था ऑक्सीजन का, आईसीयूज का, वेंटिलेटर्स का जो सपोर्ट था, उनके पाइप्स में, नेजल ब्रोंक्स में, कुछ ह्यूमिडिफायर्स में जो कि ऑक्सीजन देने में काम आते हैं, इनमें मॉइस्चर की वजह से इस फंगस का ग्रोथ हो जाता है एंड दे एंटर इनटू द बॉडी ऑफ द पेशेंट। अब ये और ऑल द मोर बहुत ज्यादा फैल गया क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स जो थे उनको बहुत सारे जो पेशेंट्स हैं कोविड के, उनको स्टेरॉइड्स देने पड़ते हैं। स्टेरॉइड्स एक एक इस तरह का केमिकल है जिसको देने से बहुत अच्छा रिकवरी मिला हमें, तो इसलिए स्टेरॉइड्स का बहुत यूज किया गया फॉर द रिकवरी, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कोविड पेशेंट्स। पर इन स्टेरॉइड्स के मिसयूज की वजह से, मे बी द डोज ज्यादा है या मे बी जितना ड्यूरेशन के लिए देना चाहिए था उससे ज्यादा ड्यूरेशन के लिए दिया गया, या वॉट एवर मे बी द रीजन, तो मिसयूज डोज का, डेज का, या पेशेंट के ट्रीटमेंट में जो भी था, द मिसयूज ऑफ दिस स्टेरॉइड्स की वजह से जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, एज इट इज इंडिया पॉपुलेशन में डायबिटिक पेशेंट्स बहुत ज्यादा हैं हमारे पास इंडिया में। मेरे पास एक डाटा है यहाँ पे, 77 मिलियन हमारे पास डायबिटिक है। हमारे जो एडल्ट पॉपुलेशन है 850 मिलियन की, तो बहुत ज्यादा डायबिटिक है हमारे पास पेशेंट। और ये डायबिटिक पेशेंट्स में अगर शुगर जो है, ब्लड शुगर अनकंट्रोल्ड है, मतलब उनकी जो ब्लड शुगर है वो बढ़ी हुई है, तो उसमें भी ये इन्फेक्शन ज्यादा हो रहा है। और फिर जब ये इन्फेक्शन हुआ, जो स्टेरॉइड्स दिए गए रिकवरी के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, उन स्टेरॉइड्स की वजह से भी जो ब्लड शुगर है वो इंक्रीज हो जाता है। तो उस समय जब स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं किसी भी डायबिटिक पेशेंट को, तो जो ब्लड शुगर है उसको बहुत अच्छी तरह से मॉनिटर किया जाता है, और मॉनिटर करना चाहिए, क्योंकि बढ़ा हुआ जो ब्लड शुगर लेवल है, अनकंट्रोल्ड ब्लड शुगर लेवल, वो एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट, एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट देता है इस फंगस को बढ़ने के लिए, और ये फंगस बढ़ने लगा। अब क्या हुआ, पेशेंट रिकवर हो गया, उसने स्टेरॉइड्स लिए, डायबिटिक पेशेंट है, मोस्ट ऑफ द केसेस की मैं बात कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हीं में ही हो रहा है, बट 75 to 80% पेशेंट्स वो ही हैं जो रिकवर हो गए हैं कोविड से, और जिनको डायबिटीज है और जिनको स्टेरॉइड दिए गए थे। तो ये स्टेरॉइड्स, अनकंट्रोल्ड ब्लड शुगर लेवल और कोविड रिकवरी, ये तीनों मिलकर it makes the person more susceptible, more prone to the this infection. तो क्या होता है, वो रिकवर होकर आ गए, उन पेशेंट्स को बहुत 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 सावधान रहना है
क्योंकि उन पेशेंट्स में ये इन्फेक्शन बहुत जल्दी बढ़ सकता है। तो ये जो आज का वीडियो है, इसमें मैं आप सबसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आपके घर में, आपके आसपास, आपकी सोसाइटी में, आपके नेबरहुड में, आपके रिलेटिव्स में, आपकी फैमिली में अगर कोई कोविड रिकवर्ड पेशेंट है, जो कोविड से रिकवर होकर आया है और उसको डायबिटीज है और उसका ट्रीटमेंट स्टेरॉइड से हुआ था, तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी वेरी वेरी कॉशियस। बहुत अच्छी तरह से उनके ब्लड शुगर को मॉनिटर करना है। ब्लड शुगर उनका अनकंट्रोल नहीं होना चाहिए। हाई ब्लड शुगर जो है वो इस फंगस को बहुत अच्छा एनवायरनमेंट देता है बढ़ने के लिए, और ये इतनी जल्दी से फैलता है। जैसे मैंने आपको बताया कि साइनसेस के एयर जो हमारे ब्लॉक्स हैं, एयर जो पॉकेट्स हैं, उनमें जाके ये आंखों को इन्फेक्ट कर रहा है, नोज को इन्फेक्ट कर रहा है, जॉज को इन्फेक्ट कर रहा है, ब्रेन को इन्फेक्ट कर रहा है, लंग्स को इन्फेक्ट कर रहा है, और कुछ पेशेंट इट्स फेटल। तो ये जो इन्फेक्शन है, इसका जल्दी से जल्दी अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट, यही इसके दो इलाज हैं। अर्ली डायग्नोसिस इज द कीवर्ड। अगर इन्फेक्शन है बॉडी में तो जितना जल्दी उसका डायग्नोसिस हो पाएगा, तभी उसका ट्रीटमेंट शुरू हो पाएगा। तो ये, अब इसको ब्लैक फंगस क्यों कहते हैं? इसको ब्लैक फंगस इसलिए कहते हैं क्योंकि जब इसका इन्फेक्शन है, तब आपको या तो यहाँ ब्लैक स्किन आपकी ब्लैक हो जाएगी, नोज की, आंखों के नीचे, और जो डिस्चार्ज है, नेजल डिस्चार्ज जो होता है, वो भी एक बहुत गंदी सी स्मेल के साथ ब्लैकिश कलर का है। तो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड ब्लैक फंगस। क्लियर? अच्छा, अब डायग्नोसिस कैसे हो? डायग्नोसिस के लिए एक नेजल जो स्क्रैप्स हैं वो निकल लिए जाते हैं, लेबोरेटरी में इसका टेस्ट होता है, और उन नेजल स्क्रैप्स को बायोप्सी के लिए भेजा जाता है, और बायोप्सी की रिपोर्ट के बाद पता चलता है कि फंगस का इन्फेक्शन है या नहीं। और अगर फंगल का इन्फेक्शन है तो वो कितना फैला हुआ है, उसके लिए एमआरआईज होते हैं, और उससे पता चलता है कि कितना वो बॉडी में फैला हुआ है। ये सब मेडिकल, ये सब एक बार हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद डॉक्टर्स, दे आर द बेस्ट जजेस, वो सब डिसाइड करते हैं कि कितना फैला हुआ है, क्या करना है, किस तरह से इसका ट्रीटमेंट होना है। अभी रिसेंटली इसका जो ट्रीटमेंट है, वो भी जो ड्रग है वो बहुत शॉर्टेज थी उसकी, क्योंकि ये इन्फेक्शन पहले बहुत रेयर था। मैन्युफैक्चर ये इंडिया में ही होती है इसकी जो जो ड्रग है, बट क्योंकि इसका बहुत रेयर इन्फेक्शन था तो इसलिए इतना डिमांड नहीं थी। बट ऑल ऑफ अ सडन अभी पोस्ट कोविड एरा में बहुत ज्यादा डिमांड होने से कुछ इसकी शॉर्टेज भी काफी जगहों पे देखी गई। और इसका जो इलाज है, द ट्रीटमेंट है, इट इज कॉस्टली ऑल्सो, it goes into lakhs. So the keyword here is early diagnosis and prevention. Prevent कैसे करें, इसको हम रोकें कैसे? इसको रोकने के लिए हमें क्या करना है? हमारे साथ वेंटिलेटर में जो था, ह्यूमिडिफायर में जो था, ऑक्सीजन पाइप्स में जो था, नेजल ब्रोंक्स में जो था, वो सब हमारे कंट्रोल में नहीं है। पर जो हमारे कंट्रोल में है वो क्या है? हमें अपना एनवायरनमेंट क्लीन रखना है और ड्राई रखना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ड्राई रहे, कोई भी मॉइस्ट, इवन जो मास्क आप पहन रहे हैं वो भी गीले नहीं होने चाहिए। अगर आप मास्क पहन रहे हैं, इट शुड बी सन ड्राइड, धूप में सूखे हुए मास्क आपको यूज करने हैं। कहीं भी डंप और मॉइस्ट चीजों को अपने घर के आसपास इकट्ठा ना होने दें जहां ये फफूंद फैल सके। ऐसी चीजों को अपने घर में अच्छे आसपास देखिए। और वेंटिलेशन, एयर का आर पार होना, ड्राई एयर का बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। एसीज भी अगर आप यूज कर रहे हैं तो प्लीज एक डोर या विंडो ओपन रखिए, सो दैट द वेंटिलेशन शुड बी प्रॉपर इन द रूम। सो डैम्प और मॉइस्ट चीजें जितनी भी हैं उनको अवॉइड कीजिए। कंडीशन हाइजीनिकली, आपके जो वॉशरूम्स हैं, आपके जो टॉयलेट्स हैं,
they should be clean, and the sanitizers, the disinfectants, everything should be used. और बेस्ट सैनिटाइजर है हमारा सन। तो धूप में आप इवन जो मास्क आप यूज कर रहे हैं उनको धूप में रख के करिए, यूज कीजिए, एकदम ड्राई करिए। और स्पेशली सब ये तो जनरल मैंने बताया, हमें जनरल जो है पब्लिक उनको क्या क्या करना चाहिए टू प्रिवेंट दिस इन्फेक्शन, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ पोस्ट कोविड में ही हो रहा है, बाकियों में भी हो सकता है, बट चांसेस आर लेस and more chances are in the post covid recovered patient who are suffering from diabetes and who are having uncontrolled blood sugar level। तो ये सारी चीजें जिनके साथ हैं उनको बहुत बहुत ध्यान रखना है कि ये इन्फेक्शन उनको ना हो, बिकॉज दिस इन्फेक्शन इज डेडली। मैंने बताया बहुत जल्दी फैल रहा है, विद इन फ्यू डेज इट स्प्रेड्स ऑल ओवर द बॉडी। ओके, नाउ एक जो सबसे अच्छी चीज है इस म्यूकरमाइकोसिस के बारे में वो ये है कि ये इन्फेक्शियस नहीं है। अगर आप किसी ब्लैक फंगस वाले पेशेंट के साथ बैठ रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, कोई यूज कर रहे हैं बर्तन और वो, तो आपको वो नहीं होगा। So it is not infectious. This black fungus is not infectious. तो ये भी एक चीज हमें ध्यान में रखनी है। It's not like corona. तो this also we should keep in mind while taking care of these patients। अगर हमारे घर में हमारे कहीं कोई इस तरह का पेशेंट है तो you need not worry about all these things। और अगली बात, ये जो अभी तो ब्लैक फंगस बहुत सुना हमने शुरू में, बट अभी कुछ रिसेंटली 2-3 दिन पहले बिहार में केस आया येलो फंगस, फिर एक केस आया व्हाइट फंगस। अब ये क्या है, तो एक शॉर्ट में मैं आपको कंपेयर करके बता रही हूँ कि इनमें डिफरेंस क्या है। ये तीनों वैसे तो फंगस ही हैं, तीन तरह अलग अलग तरह के फंगस हैं, बट इनमें कंपैरिजन अगर हम करें तो ये जो ब्लैक फंगस है वो बहुत ज्यादा फैला हुआ है और ओवर 10,000 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। ये हमारे नोज को, फेस को, ऑर्बिट ऑफ द आईज, ब्रेन एंड लंग्स, इनको इन्फेक्ट करता है। और इसमें शुरू का जो सिम्टम है वो चेस्ट पेन हो सकता है, पेन ऑन वन साइड ऑफ द फेस, फेस के एक साइड में आपको पेन हो सकता है, टूथेक, दांत में आपको दर्द हो सकता है, और डिसकलरेशन ओवर द नोज, नोज के ऊपर जो कलर है वो दूसरा बनने लग जाएगा, ब्लैकिश कलर आ सकता है आपके नाक के ऊपर, ब्रेथलेसनेस हो सकती है आपको, फिर ब्लैकिश डिस्चार्ज विथ फाउल स्मेल, गंदी सी स्मेल के साथ ब्लैकिश डिस्चार्ज नाक में से हो सकता है। ये सारे इसके सिम्टम्स हैं और इसके लिए ये काफी, ये जो सबसे ज्यादा फैला हुआ है वो ये ब्लैक फंगस है। अब हम देखते हैं कि व्हाइट फंगस क्या है। व्हाइट फंगस भी फंगल इन्फेक्शन ही है, बट ये दूसरा फंगस है, कैंडिडा फैमिली के फंगस है, दूसरे फैमिली का फंगस है, तो है ये भी फंगस ही। अब इसमें बहुत कम केसेस आए हैं अभी तक, और इसमें जो सिम्टम्स है ये बिल्कुल कोविड की तरह सिम्टम्स है। मतलब आपको थोड़ा सा फीवर होगा, कफ हो सकता है, ब्रेथलेसनेस हो सकती है, हेडेक हो सकता है, स्वेलिंग हो सकता है, और जो लोग डायबिटीज या कैंसर के साथ सफर कर रहे हैं उनमें ये ज्यादा देखा गया है। और व्हाइट पैचेस आपको ओरल कैविटी में दिखेंगे, व्हाइट डिस्चार्ज होगा, स्किन में रैशेस दिख सकते हैं आपको। तो व्हाइट फंगस जो है ये बहुत ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि दिस कैन अफेक्ट न्यूमरस वाइटल ऑर्गन्स। एक बार अगर इसका इन्फेक्शन बढ़ गया तो ये अंदर जाके काफी ऑर्गन्स को इन्फेक्ट कर सकता है। सो जैसे लंग्स हैं, किडनी है, ब्रेन है। सो दिस इज मोर, so this is very dangerous, white, as compared to black fungus. Now what is yellow fungus? If we compare black and white with yellow,
this is rather fatal because it is very deadly, because it begins internally. ये जो है ब्लैक और व्हाइट है, ये जैसे मैंने आपको बताया एयर से आएंगे और इन पैचेस में जाएंगे और फिर इन्फेक्ट करेंगे, जबकि ये येलो जो है वो अंदर से इन्फेक्शन शुरू करता है और अंदर इसके सिम्टम्स हमें काफी दिनों तक नहीं दिखते, और इसके सिम्टम्स ना दिखने की वजह से इसका ट्रीटमेंट भी डिले हो जाता है। तो ये जो है इसके सिम्टम्स आर नॉट विजिबल और ये इंटरनली होता है, लेट डायग्नोसिस होता है, इसलिए फेटल हो जाता है, बिकॉज डायग्नोसिस इसका जल्दी कर पाना मुश्किल है, इसलिए दिस is fatal. This yellow fungus is fatal because by the time the person come to know about this infection, it is very late, because internally the infection has started and it is not showing any external symptoms by which we can find out that there is infection. But still the symptoms which one can monitor are loss of appetite, lethargy, weight loss, then sunken eyes, they organ the wounds and all, कहीं पे अगर चोट लगी हुई है तो वो ठीक नहीं होगी जल्दी से, और जो अंदर है चोटें वो भी इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकता है, और चोट जो है वो बढ़ती जाएगी, आपकी पस निकलेगा काफी, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड येलो फंगस। तो इसलिए पस काफी निकलता है, वुंड में जो हीलिंग है वो बहुत लेट हो जाती है, और ये जो थोड़े बहुत सिम्टम्स हैं जो कि काफी और चीजों के मेडिकल एलिमेंट बाकियों के भी हो सकते हैं सिम्टम्स, पर वी हैव टू मॉनिटर, वन हैज टू मॉनिटर इट, बिकॉज इफ वी monitor it, the symptoms, and we go for early diagnosis, then the prevention, the treatment is possible, and it can be treated. Even the yellow fungus can be treated. So these are the things which we have to remember. Okay, now what are the prevention guidelines? Prevention guidelines क्या होनी चाहिए अगर ये infection हुआ है हमें तो, और अब आगे ना हो और लोगों में ना हो, उसके लिए प्रिवेंशन गाइडलाइंस क्या है? वो है जुडिशियस यूज ऑफ स्टेरॉइड्स, फिर करेक्ट टाइमिंग्स, डोजेज एंड ड्यूरेशन। नाउ दैट यू आर अवेयर, नाउ दैट वी आर अवेयर कि दिस कैन बी डन, सो अगर स्टेरॉइड पे कोविड पेशेंट है तो वी कैन मॉनिटर दिस ऑल्सो। देन एंटीबायोटिक और एंटी फंगल जो मेडिसिन हैं उनका यूज भी जुडिशियली होना चाहिए। फिर क्लीन स्टेराइल वाटर फॉर ह्यूमिडिफायर्स which are given during the oxygen therapy, proper maintenance of pipes and nasal prongs, regular and proper oral and dental hygiene। अब ये हम लोग खुद कर सकते हैं, ओरल और डेंटल हाइजीन भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है थ्रू कोविड एंड पोस्ट कोविड टाइम। जब आप इन्फेक्टेड हैं कोरोना से तब भी और उसके बाद भी आपको अपने ओरल हाइजीन का बहुत ध्यान रखना है, आपको रेगुलर गार्गलिंग करना है सॉल्ट वाटर, सलाइन वाटर से, बीटाडिन से, और ब्लड शुगर लेवल को मॉनिटर करना है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ब्लड शुगर लेवल शुड बी मॉनिटर्ड, क्योंकि ब्लड शुगर लेवल अगर हाई है तो चांसेस बहुत बहुत बढ़ जाते हैं कि ये इन्फेक्शन फैलेगा, बहुत जल्दी फैलेगा। अब जो है इसका मॉर्टेलिटी रेट जो है वो अर्ली डायग्नोसिस और प्रॉपर ट्रीटमेंट से कम किया जा सकता है। ट्रीटमेंट इज पॉसिबल, देयर इज नथिंग टू बी फेयरफुल, एंड हमको डरना नहीं है। कहते हैं ना डरना, अगर हम अभी जो डर का माहौल बना हुआ है उसको हमें रोकना है, क्योंकि जो डर है वो एक नेगेटिव इमोशन है, और इसके साथ जो हमें इसको रिप्लेस करना है पॉजिटिव इमोशन से, वो है नॉलेज, राइट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। We should be aware, we should be alert, we should have the right kind of information, we should have the knowledge that how it spreads and what we can do as individual to prevent this infection.
So I think this is all about the black fungus, which I wanted to discuss with you all, and be very very careful about this infection. ये जो इन्फेक्शन है बहुत डेडली इन्फेक्शन है, हमें बहुत बहुत ध्यान रखना है. एंड आई जस्ट राइट कि एक थोड़ा सा क्लियर पिक्चर जो ब्लैक फंगस, येलो फंगस, वाइट फंगस जो हम दिन रात आजकल सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उसके बारे में हमें मिले. एंड दैट्स व्हाई आई हैव डन दिस वीडियो. Hope you have liked it and hope this video is going to give some, even if I just think that even if one person, even if one child, one parent or one teacher colleague of mine is changing his or her life for a positive change and for a better mode of the life, I am successful. So my success is that only, that if you get this right kind of information. Thank you so much. Stay at home, stay safe, stay healthy, and the most important thing is stay happy. Thank you.